اس کی چیخیں اس بند کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسے رسی سے باندھ کر کمرے کے وسط میں لٹکایا گیا تھا۔ پشت پر اور پیٹ پر بھاری ڈنڈے مارے جا رہے تھے، جسم پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ سرمئی شرٹ خون آلود ہو چکی تھی، چہرے کے نقوش بگڑ چکے تھے، ہونٹوں کے کنارے پھٹے ہوئے تھے اور گالوں کی جلد اکھڑی ہوئی تھی۔ بائیں آنکھ بری طرح سوج چکی تھی، جسم کے ہر حصے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی چیخیں اس پر زور آزمائی کرتے آدمیوں کے لیے سکون قلب کا باعث تھیں۔ میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں لڑکے، حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ایک آدمی کی کڑک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ بولتے ہوئے اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ اس شخص پر ڈال کر منہ میں جمع ہوتے خون کو فرش پر تھوکا تھا۔ بہت ضدی ہو، اگر اسی طرح تکلیف سے مرنا نہیں چاہتے تو بتا دو، ورنہ یاد رکھو تم نہ زندوں میں رہو گے نہ مردوں میں۔ اس شخص نے اسے خبردار کیا تھا۔ تم میری کھال بھی کھینچ لو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ اس شخص نے گہری سانس لی، پھر پاس کھڑے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر موٹا ڈنڈا اس کے پیٹ پر مارا۔ اسے اپنی پسلیاں چٹکتی محسوس ہوئی تھیں، منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی۔ اگلے لمحات میں اسے پے در پہ ڈنڈے رسید کیے جا رہے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر اس کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ ایک ڈنڈا اس کے سینے پر پڑا تھا، اسے خون کی کے آئی تھی۔ جس جگہ اوپر کر کے اسے باندھا گیا تھا وہاں سفید فرش پر پانی کی طرح خون گرا تھا۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ خیام کو ابراہم کے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ آخر اس نے وہ ویڈیوز کہاں دفن کی ہیں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اس نے رک کر اسے دیکھا، پھر کرسی سے ٹیک لگائی۔ ایذا، تمہیں نہیں لگتا وہ ویڈیوز جہاں بھی ہیں تم ان سے واقف ہو؟ اس نے پورے سار لہجے میں کہا تھا۔ ایذا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھڑکی سے چھن کر کے آتی روشنی اس کے سفید رومال پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس سے آنکھیں ملانا محال تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کم فہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ دلال کے تمہارے ساتھ عجیب رشتہ ہے ایذا، تم اس رشتے کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس درندے کے دل پر پہلی ضرب تم نے لگائی تھی۔ وہ تمہیں عزیز رکھتا ہے۔ اس نے ایک عرصہ تمہارے باپ کی طرح تمہیں پالا ہے۔ تمہارے اس کے خلاف اعلان جنگ پر اس نے خود تمہیں وہ قلعہ مہیا کیا جہاں سے تم اس کے خلاف لڑ سکو، یعنی وہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس سب پر غور کرو تو ایذا، تم ہی ہو وہ جسے اس کا ہمراز ہونا چاہیے۔ یعنی دلال کے بعد کوئی جانتا ہے کہ وہ ویڈیوز کہاں ہیں تو وہ تم ہو۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ایذا یک تک اسے دیکھی گئی۔ وہ اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ ایک شخص جو اس کا سخت دشمن ہے وہی اس کا محافظ ہے، اور وہ اس کی ہمراز ہے۔ کیا قدرت اس سے بڑا مذاق اس کے ساتھ کر سکتی تھی؟ تم اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایذا، تم اور میں، ہم دونوں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اپنا آشیانہ اجڑنے کے بعد انہی کے ہاتھوں میں پروان چڑھے ہیں، اور یہی وہ مشترکہ بات ہے ہم میں جو ہمیں گیم چینجرز بناتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا۔ ایذا نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ عرصے سے ذہن میں اٹھتا سوال لبوں پر لے آئی تھی۔ دوستوں کے لیے مہربان، دشمنوں کے لیے عتاب۔ وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ایذا سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ آخر اسے کیوں اپنی پہچان بتائے گا؟ میں یاد کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر دلال نے واقعی مجھے اپنا ہمراز بنایا ہے تو یقین کرو اس راز کے بوجھ سے دن بدن میرے لیے سانس لینا محال ہو جائے گا۔ میں جلد از جلد اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں گی، اس نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ اسے سر کو خم دیا۔ کھڑکی سے آتی روشنی جسے وہ اس وقت خود پر روک کے بیٹھا تھا اس کے سر جھکانے پر ایذا کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ دایاں ہاتھ چہرے کے آگے کر کے اس روشنی کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ زرار پلان کے دوسرے مرحلے پر عمل کب شروع کرے گا؟ جب اسے یقین ہو جائے گا اب اس کی بات کا یقین کیا جائے گا، مسکراتے ہوئے جواب دیا گیا۔ مگر وہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ نو رسک نو گین۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گہری سانس لے کر ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں زیاد کے پاس جا رہی ہوں۔ آج کل بدر بھی یہی ہے نا؟ اس کے سوال پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ ہاں، ہڈیاں توڑوانے آیا ہے اپنی، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ ایذا ہلکا سا مسکرا دی، پھر الوداعی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ عموماً اس کی ملاقات اس لڑکے سے فیکٹری میں ہوا کرتی تھی، مگر آج اس نے ایذا کو یہیں بلوایا تھا۔ وہ گلے میں پڑا مفلر ٹھیک کرتی راہداری میں قدم رکھنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک اس سے پہلے اس کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ لانگ کوٹ ہوا کے جھونکے سے ہلکا سا لہرایا تھا۔
कमर पर गिरे बाल हल्का सा कसमसाए थे। वो उस कमरे के बाहर रुक गई जहां उन सबकी मुश्तरका ऑफिस थी। वो दरवाज़ा धकेलने ही लगी थी कि दूसरी तरफ ये काम उससे पहले ख़याम ने किया था और नतीजा इज़ा की चीख की सूरत में निकला था। शीशे का भारी दरवाज़ा खुलते ही उसके वजूद से टकराया था। वो एकदम लड़खड़ाई थी। धकेले जाने के बायस वो पीछे गिरने लगी थी। ख़याम बदहवास होता आगे आया था। वो तब तक दीवार का सहारा लेकर अपने कदम ज़मीन पर जमाने में कामयाब ठहरी। हैंडबैग फेंककर दोनों हाथ पेशानी पर रखती वो सख्ती से आंखें मींच गई। ख़याम की निगाह उसकी लंबी गदास उंगलियों से टपकते खून की बूंदों पर टिकी। उसकी रंगत फक हुई थी। इज़ा खून बह रहा है। वो जल्दी से आगे आया, उसके हाथ पेशानी से हटाकर बगौर उसकी पेशानी का जायजा लिया। दाएं आबरू से ज़रा ऊपर उसे चोट आई थी। खून की नन्ही बूंद वहाँ से गिरी थी। उसने जल्दी से अपनी जेब में रखा रुमाल निकालकर उसकी पेशानी पर रखा। आई एम सॉरी। माज़रत तलब नज़रों से उसे देखा गया। वो उसे देखकर रह गई। इतने गुस्से में दरवाज़ा कौन खोलता है ख़याम? वो बेबसी से पूछ रही थी। गुस्सा जब तुम्हारे भाई पर हो तो क्या कह सकता हूँ? वो आहिस्ता से उसका जख्म दबा रहा था। इज़ा ने रुमाल उसके हाथ में से ले लिया। वो लब दांतों में दबाए एक कदम पीछे हट गया। तुम भाई से क्यों लड़ते हो? क्योंकि तुम्हारा भाई जल कुकड़ा बना फिरता है, बात पर मुंह सुजाकर घूम रहा होता है। वो तब गया था। इज़ा ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा, जिसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल पड़ने लगा था। उसे लगा था ये सिर्फ बस बदर और जंदल में थी, लेकिन ख़याम भी ऐसे ही था। कितना लड़ते हो तुम लोग। और रुको ज़रा, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? उसकी निगाह ख़याम के गाल पर टिकी जहाँ चोट का निशान था। जख्म ताज़ा था, यानी अभी ही की कारस्तानी थी। कुछ नहीं, तुम अपनी फ़िक्र करो। ख़याम ने उसे टालना चाहा। इज़ा ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। मुझे मत बताना तुमने ज़ियाद पर हाथ उठाया है। वो उसे सख्त निगाहों से घूर रही थी। नहीं लड़ा उससे मैं। ख़याम ने मुंह बसोरा था। तो फिर? वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे पूछ रही थी। ख़याम ने निचला होठ दांतों में दबाए उसे देखा। उसे कैसे बताता ये जख्म दिया जंदल ने था, मगर जाने अनजाने में वजह वो बन गई थी। वो दोनों शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी और की वजह से आपस में लड़े थे, वरना हमेशा उनके बीच लड़ाई का सबब वो दोनों खुद ही होते थे। तुमसे पूछ रही हूँ मैं। उसे खामोश देखकर इज़ा ने उसके आगे हाथ हिलाया था। मुझे हैरत होती है तुम लोगों पर। तुम लोग साथ काम कैसे कर लेते हो? जब देखो कोई ना कोई लड़ रहा है। कभी ज़ियाद ख़याम को मार रहा है, कभी जंदल और स्वाद की जंग जारी है, कभी ज़रार और स्वाद लड़ रहे हैं, और तो और वो छटांग भर का बदल, उसे भी अपने जैसा बना लिया है तुम लोगों ने। कल वो हजरत जंदल के साथ मुँहमारी में मसरूफ़ थे, और फिर ये तुम लोगों के हाथ क्यों उठते हैं? हाँ, कोई किसी का गिरेबान पकड़ कर खड़ा है, कोई मुक्के आजमा रहा है, तो किसी की लातें बरस रही हैं। कुछ तो हया करो तुम लोग। 30 से ऊपर की उम्रें हैं तुम लोगों की। हालत 3 साल के बच्चों वाली है। नालायक, नाहंजार, एक से बढ़कर एक नामाकूल और गधा। वो उसे सुनाना शुरू हुई तो खड़े खड़े ही झाड़ पिला दी। ख़याम हैरत और बेयकीनी से सुन खड़ा उसे देख रहा था। स्वाद के बाद ये पहली लड़की थी जो खड़े खड़े उसे सुना चुकी थी, बिना रुके, बिना झिझके। अब बोलोगे कि किससे मार खाई है? वो उसकी खामोशी पर झुंझलाकर हाथ पर हाथ मारती पूछ रही थी। ख़याम हनूस बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। इज़ा ने उसे देखकर गुस्से से दांत कचकाए थे। मेरा दिल कर रहा है ख़याम, रख कर लगाऊं एक कान के नीचे, या फिर मैं ना तुम्हारा। वो अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के करीब लाई थी। अपने हर अमल से वो उसे झटके पर झटके दे रही थी। उसके वजूद में कोई हरकत और लबों में कोई जंबिश ना देखकर वो गहरी सांस लेती हाथ झाड़कर पीछे हटी। बस इतने शरीफ बनकर रहो तो किसी से मार खाने की नौबत ना आए। बेला बाजी, आप ऐसे हाथ हिला हिलाकर लड़ाका बीवियों की तरह सवाल करेंगे तो मेरे बेचारे सर कहाँ से जवाब दे पाएंगे? शक्ल तो देखिए उनकी, ऐसे लग रहा है अभी रो देंगे। कितना डांटा है आपने उन्हें। बदर जाने कहाँ से टपक पड़ा था। मासूमियत से अपनी बात मुकम्मल करता वो पल के झपकता ख़याम को देखने लगा, जो अब दांत पर दांत जमाए उसे घूरने लगा था। तुम्हारे बेचारा सर मार खाकर आ रहा है, इज़ा ने उसे इत्तला दी। बदर ने हैरत से ख़याम को देखा, जो अपने दाएं हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। आपको गलतफहमी हुई है बेला जी, कि मार खाने वालों में से नहीं है। हाँ, मारते हुए 2-4 मुक्के उन्हें भी पड़ गए होंगे तो वो अलग बात है। बदर ने उसे तसल्ली दी थी। इज़ा सर झटक कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे उस्ताद को मालूम है? ख़याम ने संजीदगी से सवाल किया था। उस्ताद जी को ही ढूंढ रहा था। अरे ये आ गए। बदर ने कमरे से निकलते ज़ियाद को देखा। उन तीनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके माथे पर बल पड़े। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
सख्त लहजे में पूछा गया। क़याम को अक्सर नज़रअंदाज किया गया। मैं आपसे मिलने आई थी, इज़ा ने इत्तला दी थी। मुझे भी आपसे काम था उस्ताद जी। बदर भी झट से बोला। ज़ियाद ने एक अचट्टी निगाह उन दोनों पर डाली, फिर क़याम की तरफ मुतवज्जा हुआ। और तुम? लहजे में गहरा तंज था। सर को हमने रोका था, सोचा थोड़ी महफिल लगा ले, बैलाबाजी से पूछे सर कितनी अच्छी कंपनी देते हैं। क्यों बैलाबाजी? क़याम के जवाब से पहले ही बदर ने तेजी से कहा था, फिर तायदी नज़रों से इज़ा को देखा जो सर इस बात में हिला गई। इसके मुंह में अल्फाज मत डालो बदर। ज़ियाद ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। बदर बेख्तियार लब दांतों में दबा गया। इज़ा हाथ में मौजूद खून आलूद रुमाल को भींच गई। क़याम दुख भरी नज़रों से उसे देखकर रह गया। आप माफ़ क्यों नहीं कर देते इन्हें? वो खामोश नहीं रह सका था। कत्ल की माफ़ी नहीं होती बदर, उसने दो टोक अंदाज में कहा, फिर बदर को जाने का इशारा किया। वो लब भींचता ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इज़ा भी उसका इशारा समझकर चुपचाप बदर के पीछे चली गई। ज़ियाद अब क़याम की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे बार बार तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े क़याम हनफी कि मेरी बहन से दूर रहो। अंगिश्ते शहादत उठाकर उसे बाखबर किया गया था। क़याम चुपचाप उसे देखता रहा। ज़ियाद सख्त निगाह उस पर डालकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो वहीं खड़ा रहा, चुपचाप। और अगर इंसान दूसरों को कुछ कहने का मौका देने लगे तो कितने मसले हल हो सकते हैं। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। वो दोनों हाथ बाहर मिलाए कोहनिया मेज पर टिकाए मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा था। ज़ियाद तुम? वो बेख्याली में कुछ कहते कहते रुकी, अपनी गलती पर ज़बान दांतों तले दबाई और आदत के मुताबिक आंखें सख्ती से मींची। ज़ियाद मुस्कुरा दिया, ज़रा सा, बिल्कुल हल्का सा। इज़ा, मैं तुम्हारा भाई हूँ मगर सबसे बढ़कर दोस्त हूँ। तुम मुझे ज़ियाद कह लिया करो, कोई मसला नहीं है। वो आराम से उसकी मुश्किल आसान कर चुका था। तुम बहुत अच्छे भाई हो। वो खुलकर मुस्कुराई। ज़ियाद ने सर को खम दिया। मुझे क़याम के मुतालिक पूछना था, तुम उससे क्यों खफा हो? क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान में? तुम दोनों तो अच्छे दोस्त थे। वो अब मुद्दे पर आई थी। ज़ियाद ने ठहर कर उसे देखा जो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए पुरजोश थी। अगर वो कहता है मैं उसका दोस्त हूँ तो वो गलत कहता है। हम दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो जवाब को टाल मटोल गया। इज़ा उसे देखकर रह गई। अच्छा भाई, नहीं बताओ, नहीं पूछ रही मैं। वो सर झटक कर कुर्सी से टेक लगा गई। चंद पल खुफगी से उसे देखती रही, फिर से तौक़ुफ़ से बोली, ये बताओ बाबा की शहादत कैसे हुई? ज़ियाद ने चौंक कर उसे देखा। वो पहली बार उससे अपने बाप के मुतालिक पूछ रही थी। उन्हें ब्लड कैंसर था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके जिस्म में जहर के असरात भी मिले हैं, यानी उन्हें जहर देकर शहीद किया गया था। उसने मुबम से अंदाज में तफसील बताई। इज़ा ने उसकी बात समझकर बस सर को जुम्बिश देने पर इत्तफा किया। खैरियत, तुमने अचानक क्यों पूछा? ज़ियाद ने उसे कुरेदना चाहा। असल में उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, स्वाद भी जाग रही थी, तो हम दोनों यही बातें लेकर बैठ गए। उसने मुझे बताया कि कैसे उनके घर को आग लगी और कैसे हमारा घर उजड़ा, क़याम के साथ क्या हुआ और बदर कैसे बिछड़ा। वो सोच सोच कर बता रही थी। ज़ियाद ने गैर महसूस तरीके से पहलू बदला। वो कुछ याद आने पर रुककर उसे देखने लगी, फिर तौक़ुफ़ से बोली, उसने मुझे तुम्हारी और उसकी लव स्टोरी भी सुनाई। वो खिलखिलाकर हंसी। लव स्टोरी? ज़ियाद ने दाएं आबरू उठाए पूछा। हाँ, कि कैसे तुम दोनों पहले यूनिवर्सिटी में मिले, फिर उसका पीछा करते हुए तुम अनलेस आए, जानबूझकर उसके गाइड बने। तुमने कैसे उसे एक लफंगे आदमी से बचाया, उसका दिल जीतने के लिए होटल्स के बिल पे किए, फिर तुम यहाँ आ गए, फिर कहानी में ट्विस्ट आया और तुम दोनों की तारीखी शादी हो गई। वो तारीखी पर जोर देकर गर्दन गिराकर हंसी थी। ज़ियाद ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। मैं पीछा करते हुए अनलेस आया, उसका दिल जीतने के लिए होटल्स के बिल पे किए। ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। वो ज़ेरलब मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, फिर इज़ा की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने तुम्हें बताया कि ये मोहब्बत एक तरफा थी या दो तरफा? उसे शरारत सूझी। दो तरफा। तुम उसका दिल जीतने में कामयाब रहे थे ना? उसने तायद चाही थी। ज़ियाद मुस्कुराहट दबाते हुए सर इस बात में हिला गया, फिर कुछ याद आने पर संजीदा हुआ। संजीदगी से उसे देखा। इज़ा, मैं कई दिनों से ये बात तुमसे करना चाह रहा था। याद रहे, मैं सिर्फ दोस्त नहीं, भाई बनकर भी ये बात कर रहा हूँ। मेरा मान रखना। वो तमहीद बांध रहा था। इज़ा ने सवाली नज़रों से उसे देखा। मैं जानता हूँ तुम काफ़ी अरसे से मजहबी कश्मकश में मुब्तला हो। जब से ये सब शुरू हुआ है तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं है, मगर फिर भी तुमने जस्तजू मुकम्मल तक नहीं की। इज़ा, मैं चाहता हूँ तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो बहुत नरमी से कह रहा था। वो बेख्तियार नज़र चुरा गई। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुमसे तुम्हारा दीन छीन लिया गया है। अब वक्त है उसे वापस थाम लो। मुझे डर लगता है कहीं दायमी जुदाई हमारी किस्मत में ना लिख दी जाए। हम दोनों के रास्ते बाद अज मौत जुदा ना हो जाए।
ماں اور میں، ہم سب تمہارا انتظار کریں گے، ہمیں مایوس مت کرنا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، دونوں کی آنکھوں میں نمی پگھلنے لگی تھی۔ جدائی سے دونوں خائف تھے، مگر کچھ فیصلے آسان نہیں ہوتے۔ مجھے اندازہ ہے بھائی، مگر اب میں بس اس لیے اسلام قبول نہیں کر سکتی کہ یہ آپ کا مذہب ہے۔ مجھے میری تلاش کا سفر مکمل کرنے دیں۔ مجھے امید ہے جب آپ کی طرف لوٹوں گی تو آپ کو اپنا منتظر پاؤں گی۔ اسے اپنے رخسار پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ دیکھنا ایزا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ڈرا ہوا تھا، اس کا ڈر جائز تھا۔ ہر لمحہ وہ یہی دعا کرتا تھا کہ موت اس سے تب تک دور رہے جب تک وہ موت پر قادر خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ وہ اپنی بہن کو خسارے میں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ کبھی ہزاروں دلائل بھی مطمئن نہیں کر پاتے، کبھی ایک لفظ حیات بدل دیتا ہے۔ مجھے امید ہے میرا سفر تلاش جلد اختتام پذیر ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ سیاد نے بے اختیار آمین کہا تھا۔ وہ کم از کم اپنی موت سے پہلے ایزا کی طرف سے یہ خوشخبری سننا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا موت اسے مزید کتنی مہلت دینے والی تھی۔ وہ اب بس ایزا کو لوٹتے دیکھنا چاہتا تھا، اپنے اصل کی طرف۔ اگلی قسط انشاءاللہ کل۔ امید ہے کہ آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی اور لانگ لگی ہوگی۔ برائے مہربانی اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔ پچھلی کچھ ایک ساتھ میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک شیئر نہیں کر رہے، نہ کامنٹس کر رہے ہیں، نہ لائک کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر ایپیسوڈ بھی کم آئیں گی اور اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو جلدی جلدی ریویوز دیں اور لائک ضرور کریں ہر پارٹ پر۔ شکریہ۔